Dear students of class 12th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mohammad Abdullah, lecturer physics, Boys High Secondary School, Gopwara. So now we have almost completed the electromagnetic induction. In the last lecture we discussed alternating current generator, right? From which we derived the expression for the alternating current or alternating EMF. So now we are going to discuss alternating current and alternating current circuits, which is generally known as AC circuits, right? So today's topic is alternating current. Alternating current, which is abbreviated as AC. So what is alternating current? What is direct current or steady current? Or simply just let us begin. What is current? Current means rate of flow of charge. Rate of flow of charge, right? So it is generally abbreviated as I is equal to I naught, it is Q divided by T, whose unit is ampere. So it is a basic fundamental quantity having also dimensions A. Now today we are going to discuss what alternating current is. A current whose magnitude changes continuously and direction reverses periodically. Periodically is called alternating current, right? A current whose magnitude changes continuously and direction reverses periodically is called alternating current, or simply AC. The variation in the current is sinusoidal. That is, its graphical representation is a sine wave. जैसा कि आप जानते हो ऑल एसी जनरेटर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. वहाँ पे हमने एक रिलेशन डिराइव की है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए या ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए. ऑल्टरनेटिंग करंट हम यहाँ पे देख लेंगे I is equal to I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ये रिलेशन हमने वहाँ पे डिराइव की है. I is equal to I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, जहाँ पे हम I को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, I नॉट को कहते हैं इट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ द करंट. पीक वैल्यू ऑफ करंट. पीक वैल्यू क्या होता है? इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. डेफिनेशन में जाइए फिर से. हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस. मैग्नीट्यूड चेंज का मतलब होगा ये 0.1 एम्पियर भी हो सकती है, 0.2 भी, 0.3, 0.4, और उसके बाद ये फिर से डिक्रीज हो जाती है 0.3, 0.2, 0.1,
एंड इट बिकम्स यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो ये बन जाता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और इस वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ द करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज omega is equal to, this is known as angular frequency, angular frequency, angular frequency. This omega is equal to 2 pi divided by t, where t is equal to time period, t is equal to time period. Now 1 by t is equal to nu, that is frequency, so 1 by t is equal to frequency, this is known as frequency, or this is also known as driving frequency, driving frequency. Therefore we can write here omega is equal to 2 pi nu, right. This is the expression. I is equal to I naught sine of omega t. I naught means peak value of the current or maximum value of the current. Omega means angular frequency, and omega is equal to 2 pi nu or 2 pi divided by t. In India, frequency of AC is equal to 50 hertz. Remember it. Oftenly asked, right? Now, how its variation is represented, यानी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कल भी हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे, ये टाइम पीरियड और यहाँ से करंट को हम प्लॉट कर लेंगे, दिस इज 0। न से यहाँ से भी करंट होगी। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, ये हमारा आर्मेचर होगा, जनरेटर का आर्मेचर, एज इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, ये है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे साउथ पोल होगा, राइट। तो एक टाइम पे प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब अगर हम प्लेन को परपेंडिकुलर डाल देंगे, वो अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल, इसको नॉर्मल जानिए, तो नॉर्मल और इसके दरमियान जो एंगल बन जाएगा दैट इज 90 डिग्री, राइट। इसी तरह से अगर हम देख लेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लेता है, तो एट ए टाइम इट विल बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। तो कभी इसमें मैक्सिमम फ्लक्स होता है और कभी इसमें मिनिमम फ्लक्स होता है। मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो मैक्सिमम करंट होगी, मिनिमम फ्लक्स होगा तो मिनिमम करंट होगी, राइट। इसलिए जब ये पैरेलल होगा तो मिनिमम फ्लक्स होगा, मिनिमम करंट होगी। रोटेट कर लेगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम करंट होगी। फिर से रोटेट कर लेगा, पैरेलल बन जाएगा, तब भी ये फ्लक्स 0 होगा, ईएमएफ 0 होगा। सो इट टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट वन revolution. What is the time taken by the armature to complete one revolution? That is known as time period. And how many revolutions it completes in 1 second, that gives the frequency, right?
that gives the frequency. Now जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पहला पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, if omega t is equal to 0, we will get here I is equal to I0, sorry, into 0, because sin of omega t is equal to sin of 0, sin 0 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप I का वैल्यू 0 ऑब्टेन कर लेंगे। तो हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, तो यहाँ पे I का वैल्यू 0 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ओमेगा टी को लीजिए आप पाई डिवाइडेड बाई 2, तब आपका I होगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा, दैट इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90, साइन 91 होगा, दैट विल गिव यू I नॉट। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। चलो मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, omega t is equal to pi by 2, which is like this। यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो करंट इंक्रीज हो जाती है अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तीसरा पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, we will get I is equal to I नॉट साइन ऑफ पाई। साइन पाई 0 के बराबर होता है, तो आपका I 0 होगा, तो यहाँ पे हम पाई लेंगे, सो द करंट डिक्रीजेस एंड अगेन रीचेस टू द वैल्यू 0। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, so you will get here I is equal to I नॉट साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 270 के बराबर होता है, so that is -1, you will get here minus I नॉट, right। तो जब माइनस I नॉट होगा तो हमें ये ग्राफ हमारा नीचे आ जाएगा टू ए मैक्सिमम वैल्यू, टू ए मैक्सिमम वैल्यू। सो फिफ्थ पॉइंट आपका होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 2 पाई, तब आप यहाँ पे लिखे साइन ऑफ 2 पाई 0 के बराबर होगा, सो यू विल गेट हियर 0, सो एट 2 पाई अगेन द ग्राफ बिकम्स लाइक दिस। तो जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बन जाती है, इट इज नोन एज साइन वेव, sine wave, right? That is why the variation is sinusoidal. First increases to its maximum value, then decreases to 0, then again increases to its maximum value and again reduces to 0. So यहाँ पे इस करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव, and this is known as peak value of the current. Peak value means I naught. यहाँ पे भी पीक वैल्यू हम इसको लेंगे, दैट इज इक्वल टू I नॉट, राइट। लेकिन जो आज थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे इसमें, ये हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की विद रेस्पेक्ट टू टी, सो वी विल राइट हियर, पहला पॉइंट हम लेंगे, इफ t is equal to 0, t is equal to 0, that means अभी तक तो आर्मेचर ने रोटेशन स्टार्ट नहीं किया है, चाहे वो पैरेलल है या पैरेलल ही कंसीडर कर लीजिए। t is equal to 0, we will get here I is equal to I नॉट साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, इससे पहले मैंने पढ़ाया है ये 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो आपका t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, सेम इज द कंडीशन हियर। नेक्स्ट
अब t को लेंगे हम t डिवाइडेड बाई 4, सो यू विल गेट हियर I इज इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पे पाई बाई 2 लिया था, पाई बाई 2 ये पैरेलल t0, इतना सा रोटेशन हो जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बना। तो इसको हम 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 और 4 ये कंप्लीट रोटेशन है। तो ये पोजीशन होगी t डिवाइडेड बाई 4, ये पोजीशन हाफ रोटेशन हो गया, दैट इज t डिवाइडेड बाई 2, ये है 2/3 दैट इज 3t डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे आपका t होगा। तो इस टाइम को जब यूज़ कर लेंगे सो वे विल गेट हियर, यहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए, सो I0 साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई t इंटू t डिवाइडेड बाई 4, सो वी विल गेट हियर t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 2s, ये दैट विल बिकम पाई बाई 2, t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 2s दैट विल बिकम पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई I0 दैट विल बी मैक्सिमम, राइट। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, when time t is equal to t divided by 2, I is equal to I0 sin of 2 pi divided by t, यहाँ पे t डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट हियर 0। तो इस टाइम पे करंट क्या है, 0। नेक्स्ट 3t डिवाइडेड बाई 4, फोर्थ पॉइंट आपका है t इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाई 4, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई t इंटू 3t डिवाइडेड बाई 4, t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 2s 4 दैट इज 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 270 दैट इज -1, सो यहाँ पे आपका माइनस I0 होगा, तभी ये ग्राफ नीचे आ जाता है। और लास्ट पॉइंट आपका जो है t इज इक्वल टू t, कंप्लीट रोटेशन जब हो जाती है, सो I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई t इंटू t एंड t कैंसल्स, तो यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ 2 पाई 0 के बराबर होगा, सो दैट विल बी 0, सो हियर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। So this variation is known as sinusoidal variation of alternating current. Similar is the case with the alternating EMF. Alternating EMF. Alternating EMF. Same definition. An EMF whose magnitude changes continuously. An EMF whose magnitude changes continuously and direction reverses periodically is called alternating EMF. Again its variation is sinusoidal. इसी जनरेटर में हमने स्मॉल ई लिया था, यहाँ पे हम अब जनरल में कैपिटल ई देंगे, दैट इज EMF इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। जब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे अगेन दैट विल बी अ साइन वेव, तो यहाँ से हम E को प्लॉट कर लेंगे, यहाँ से T को प्लॉट कर लेंगे, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे 0
ये t डिवाइडेड बाई 4, ये t डिवाइडेड बाई 2 t डिवाइडेड बाई ये 3t डिवाइडेड बाई 4 और ये t होगा। एंड दिस इज पीक वैल्यू दैट इज E नॉट, this is peak value that is E naught. So what is peak value? It is maximum value of the alternating current or alternating voltage. So this gives the graphical representation of alternating EMF or alternating current. Now, what are the advantages of alternating current or alternating EMF? Advantages of alternate AC over DC. सिंपल लिख लीजिए आप, एडवांटेजेस ऑफ AC over DC. So there are so many advantages of AC over DC. So many advantages. Number one is generation, transmission and distribution. Transmission and distribution of AC is economical. That is less costly than DC. तो आप जानते हैं किसी भी पावर स्टेशन में इस AC को जनरेट किया जाता है। जैसे हम ओडी सिवल की बात करेंगे, लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वहाँ पे तो इसको जनरेट किया जाता है और उसके बाद इसको ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसको डिफरेंट एरियाज में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो इसकी जनरेशन, इसकी ट्रांसमिशन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही चीप है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है देन DC। अगर हम DC की बात कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में बैटरी का यूज़ कर लेते हैं और उस बैटरी से जब डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन कर लेते हैं तो हम हाई क्वालिटी की वायर को भी यूज़ कर लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो, और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन उसकी नहीं कर सकते, एंड दैट you know is very much costly. So AC generation of the AC is cheap, transmission of AC is cheap, and distribution of AC is cheap or less costly than the DC. एक दूसरी एडवांटेज इसकी है, डोमेस्टिक सर्किट्स में हम या डोमेस्टिक यूज में हम AC का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या काम कर लेता है? इट स्टेप्स इट अप और स्टेप्स डाउन, राइट। तो हम इसको स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। सो इट कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन using transformers, right?
which is not possible in the DC. तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे AC travels on the surface of the conductor. AC travels on the surface of the conductor, so costly conductor can be saved for long distance transmission. For long distance transmission. तो कैसे आपको ये क्लियर कर दें, HT वायर को देख लीजिए, हाई टेंशन वायर, जो हाई टेंशन हम यूज कर लेते हैं, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मीन्स जनरेट जहाँ पे हो जाती है, जनरेट जहाँ पे हो जाती है पावर प्रोजेक्ट होता है, पावर प्रोजेक्ट से वो ग्रिड स्टेशन पे आ जाती है, ग्रिड स्टेशन से फिर रिसीविंग स्टेशन पे आ जाती है, रिसीविंग स्टेशन से फिर सब स्टेशन पे आ जाती है. सब स्टेशन जैसे कि पावर स्टेशन मान लीजिए अगर बारामूला में है तो इसका ग्रिड स्टेशन, कहीं अगर हम कुपवारा की बात करेंगे तो आरमपुरा में है, आरमपुरा से फिर हम रिसीविंग स्टेशन में आ जाते हैं तो टिक्कर की बात कर लेते हैं. उसके बाद हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम सब स्टेशन कहते हैं. तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं. एल्युमिनियम वायर जो ट्रांसमिशन लाइन्स बाहर इन टावर्स पे या इन पोल्स पे, इलेक्ट्रिक पोल्स पे होती है, दैट इज एल्युमिनियम. लेकिन अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो अंदर इसमें एक स्टील वायर होती है. स्टील वायर, स्टील वायर उसके अराउंड एल्युमिनियम वायर होती है. एल्युमिनियम वायर. तो हम इस वायर में इनर कोर एक चीप मटेरियल का यूज कर लेते हैं. स्टील वायर ये कोर है. कोर वायर तो हम चीप मटेरियल का यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं. तो इस तरह की वायर को हम कहते हैं ACSR. ACSR, राइट, जिसमें अंदर स्टील की वायर होती है और बाहर एल्युमिनियम वायर होती है. तो इसको हम कहते हैं ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स्ड. एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स्ड, राइट. तो इस तरह से हम AC की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर लेते हैं जिसमें कॉस्टली कंडक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका एक एडवांटेज ये है कि इट ट्रैवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो हम सरफेस इस मटेरियल की बना देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कम हो और अंदर कोर मटेरियल वो यूज़ कर लेते हैं अगर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो
नो प्रॉब्लम, पूरा एल्युमिनियम बना देंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज फोर्थ, it travels to a long distance without much power loss, using transformers. पावर स्टेशन, मैंने आपसे कहा पावर स्टेशन से ग्रिड स्टेशन में आ जाती है, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। उसके बाद हम इसको लेते हैं रिसीविंग स्टेशन पे, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम सब स्टेशन पे लेते हैं तो यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा पावर लॉस नहीं होती है क्योंकि हम इसमें ट्रांसफार्मर्स का यूज़ कर लेते हैं। सो this is again advantage of the transformer because it is used for the long distance transmission of the electric voltage or the current. Next point is AC is better controlled that without much loss in the circuit using choke coil। देखो हम डीसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एसी सर्किट्स में हम रेजिस्टेंस के बदले में चोक कॉइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को यूज़ कर लेंगे देयर विल बी ए लार्ज पावर लॉस और ग्रेटर पावर लॉस, तो इसको हम कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग ए चोक कॉइल। सिक्स्थ पॉइंट आपका है इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी, easily converted into DC using rectifiers। तो याद रखिए rectifier is a device which is used to convert AC into DC, right? और अगर हम DC को AC में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप जानते हैं उसके लिए हम ऑसिलेटर्स का यूज़ कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो एसी मशीन्स होती हैं, जो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ कर लेती हैं, एसी मशीन्स और स्मॉल इन साइज and having longer life and easy to use, right? So these are known as advantages of AC over DC। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये सबसे पहला प्रॉब्लम इसका है AC इज मोर डेंजरस देन DC। AC is more dangerous than DC, right? Because it is a root 2 times the effective value of AC,
देखो बेटा, जब हम लेते हैं I इज इक्वल टू I नॉट, या E की बात करेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। E नॉट आपका होगा मैक्सिमम वैल्यू, और E को हम लेते हैं इफेक्टिव वैल्यू। याद रखिए इफेक्टिव वैल्यू, या इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, जो इफेक्टिव वैल्यू होता है एसी का, इफेक्टिव वैल्यू E इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। जानते हो गए, एक फेज हमारा 220 वोल्ट का होता है, डबल फेज होगा तो 440। E नॉट मैक्सिमम वैल्यू, E इज इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू और एमएस वैल्यू, सॉरी इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। जो हमारी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट्स की होती है। अब जब हम इफेक्टिव वैल्यू की बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द इफेक्टिव वैल्यू, √2 टाइम्स द इफेक्टिव वैल्यू। यहाँ पे एक रिलेशन में पहले यूज कर लूंगा, अभी आपने वो नहीं पढ़ी है। सो E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई √2। E is equal to E naught divided by √2. So E naught is equal to √2 E. ये है इफेक्टिव वैल्यू। So E naught is equal to √2 multiplied by 220। ठीक लिखा था हमने, सप्लाई दैट इज इक्वल टू E। So E naught is equal to √2 multiplied by this, so it will become 311 volts approximately. 311 volts. That means its peak value is very large. Its maximum value is very large. So it is more dangerous than the DC. फिर से सुनिए, E is equal to E0 sin of omega t, E naught is equal to maximum value, और इसको कहते हैं हम इफेक्टिव वैल्यू। सप्लाई जो 220 वोल्ट्स की होती है, दैट इज आरएमएस वैल्यू, चाहे इसको कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू। सो E is equal to E naught divided by √2, E naught is equal to √2 multiplied by cross multiplication. So E naught is equal to √2 multiplied by 220, that is 311। दूसरी डिसएडवांटेज इसकी है, सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, not used in electrolysis processes. For example, electroplating, number one. Number second, electrotyping. Number third, electro refining.
In these processes we can use DC, यहाँ पे AC का यूज नहीं किया जाता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है डिसएडवांटेज इसकी, it is not uniformly distributed. It is not uniformly distributed throughout the cross section of a conductor. The cross section of the conductor as it travels along the surface. This is known as secant effect. So density is maximum, current density is maximum on the outer surface as compared to the inner core. So these are known as disadvantages of the AC over DC. So in the next lecture we will discuss its mean value and then RMS value of the alternating current and voltage, which is very important. Okay, thank you.